Hello students, God bless you. Countdown Mathematics for class 8th and chapter number 3. This chapter is about cube and cube roots. So what is a cube? Simply we can say that if a number is multiplied 3 times by itself, then we get the cube of that number. For example, if I multiply 2 3 times, 2 multiplied by 2, this is equal to 8. So we can say that the cube of 2 is 8. Similarly, if we write 3 multiplied 3, then we get 27. 3 3s are 9, 9 3s are 27. So we can say that the cube of 3 is 27. Similarly, 5 multiplied 5 is equal to 125, and we can write it as the cube of 5 is 125. From these examples, you can easily notice that when a number is multiplied by itself 3 times, then we get the cube of that number. And what about the cube root? So root of this cube is 2, because 2 is multiplied 3 times. We can say that the cube root of 8 is, this is the sign of cube root. Okay, these are the cubes. And here we will try to understand with examples the cube root. So this is the sign of cube root. 3 is written with the radical sign. If I write 8 here, then we will read it as cube root of 8. So cube root of 8 is 2. Similarly, if I write the cube root of 27, then it will be 3. Similarly, the cube root of 125, it will be 5. But the question is this, you can ask that how we can say that the cube root of 125 is 5. Students, we know that if we make the prime factors of 125, the prime factors of 125 are 5, 5 and 5, as we have already written it. And this, if we want to find the cube root of 125, then we will write it as 5 raised power 3, its cube root. And when we write this radical form into exponential form, then what do we do? Cube root, it has power 1 over 3, as the power of square root is 1 over 2. So it will be cancelled, so 5. So this is the cube root of 125, that is 5. In the same way you can find the cube root of 27, and in the same way you can find the cube root of 8. So today I will tell you few properties of cube also. The cube of a positive integer is positive, or positive number is positive, and the cube of a negative number is negative. Positive number, cube is also positive, and negative number, the cube is also negative. And what about the cube root of the positive and negative numbers? Yes, the same property we can apply here. The cube root of a negative number will be negative, and the cube root of a positive number will be positive. If I write the minus or negative sign with 8, then we will make the prime factors of minus 8, minus 2, minus 2, minus 2, and then we will write it in exponential form. 3 will be cancelled with 3, and the cube root of minus 8 will be minus 2. Okay, cube of a
positive number is positive, cube of a negative number is negative, and same with the cube root. The cube root of a positive number is positive and cube root of negative number is negative. Similarly, two more properties. The cube of an even number is even. This is also very good property. 8 is the even number and its cube root is even. 27 is a odd number and its cube root is a odd number. 125 once again it is an odd number, so its cube root is odd number. So these are the properties that we should keep in mind, and now we will do few questions of this exercise. Okay, let's do the question number 3. Which of the following numbers are perfect cubes? So how can we decide that a number is a perfect cube or not a perfect cube? So the method is that we will make the prime factors of that number. Okay, 729, and we will make the prime factors of 729 here. Okay, now if you don't know then how can we divide this, there is one trick, that 9 and 2 11, 11 plus 7 18. So 18 is divisible by 3, so this number will also be divisible by 3. Okay, so we will divide it by 3. 3 2s are 6 and 3 4s are 12 and 3 3s are 9. Again 4 plus 3 7, 7 plus 2 9. It is a multiple of 3, so 3 8s are and 3 1s are. Again 3 27s are, again 3 9s are, again by 3 3s are, again 3 1s are. Now you can make the sets of 3. This is a perfect cube, this is also a perfect cube. So we can say that there is no factor which is alone. These all are in the sets of 3. So what is the result? We will write that 729 is a perfect cube. Perfect cube. ओके, ये इसका हमने कैसे डिसाइड किया? अगर हमारे पास यहां पे एक और 3 होता, फॉर एग्जांपल एक और 3 होता, तो फिर क्या होना था, ये 3 का एक सेट बन गया, ये भी 3 का एक सेट बन गया, लेकिन इस 3 का आगे 3 3s का मतलब 3 3s का एक सेट नहीं बना, तो हमने लिख देना था दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. अगर ये इस तरह से 3 3 के सेट्स बन जाए, 3 भी बन सकते हैं, एक 3 3 का एक और सेट बन जाता फिर भी परफेक्ट क्यूब होना था, 4 बन जाते फिर भी परफेक्ट क्यूब होना था, लेकिन अगर कोई एक 2 भी होते 3, तो भी हमारा ये परफेक्ट क्यूब नहीं होना था. ओके, लेट्स चेक 2700. ओके, अभी हमें चेक करना है कि क्या 2700 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है. तो चलें इसकी 2700 की हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं. 2700, ये तो आपको पता होगा कि ये 27 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 9s are 27 और आगे 2 zeros, फिर 3 से करते हैं तो 3 3s are, आगे फिर 2 0, फिर 3 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से कर देंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 25 और 5 1s are 5. अब ये देखें कि ये एक सेट बन रहा है, लेकिन ये 2 के 3 नहीं बन रहे, 5 के भी 3 नहीं बन रहे. अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एक जो है वो जहन में टिप रख लें, वो ये कि अगर प्राइम फैक्टर्स में आपके पास फैक्टर्स जो है वो 3 बने तो भी परफेक्ट क्यूब, 6 बने तो भी परफेक्ट क्यूब, 9 बन जाए तो भी परफेक्ट क्यूब, 12 बन जाए तो भी परफेक्ट क्यूब, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7. मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं टोटल गिन लें आप, अगर वो क्या है 3 है, यहां पे खत्म हो जाता है ये, तो हमने कहना था परफेक्ट क्यूब. अगर 6 है तो भी परफेक्ट क्यूब, अगर 9 है तो भी परफेक्ट क्यूब, और अगर 12 हो जाए, जितने भी आगे चलते जाएं, लेकिन वो 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए. 3 के मल्टीपल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, यानी आपके पास अगर फैक्टर्स जो है वो 3 है तो भी परफेक्ट क्यूब,
6 है तो भी परफेक्ट क्यूब, 9 है तो भी परफेक्ट क्यूब, लेकिन यहां पे तो 7 बन रहे हैं, तो हम क्या लिख देंगे? 2700 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. 2700 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो 3 के मल्टीपल में नहीं आ रहे. मतलब ये 7 बन रहे हैं हमारे पास फैक्टर्स, तो 7 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है. तो इस तरह से हम कोई भी नंबर जो है उसको चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद टू मेक द क्वोशिएंट अ परफेक्ट क्यूब. इसका मतलब ये हुआ कि ये 864 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. किसके साथ, किस नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? परफेक्ट क्यूब आपको पता ही है, जैसे आपको पता है कि 2 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है? 8. 3 का क्यूब कितना होता है? 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27. 4 का कितना होता है? 64. 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई. 5 का कितना होता है? 125. तो ये सारे परफेक्ट क्यूब्स हैं. अब चले सपोज ऐसे लिखा हो कि 32 जो है, 32 को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो 32, ये मैंने एक एग्जांपल ले ली इस क्वेश्चन को सिखाने के लिए कि 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब. आपको पता है कि 32 के बाद जो है ना 64 परफेक्ट क्यूब है. तो वैसे तो अब आपको फौरी आइडिया हो गया होगा कि 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हम यहां से कैसे सीखेंगे? हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं. 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 आर एंड 2 1 आर. अब गौर करें जरा, 1 2 3 4 5. मैंने आपको बोला था कि प्राइम फैक्टर्स में क्या होने चाहिए? या तो 3 होने चाहिए या 6 होने चाहिए. तो याद रखें कि ये तो 2 3 टाइम हो गया, ये 2 भी कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे. अब इसका मतलब ये हुआ एक 2 अगर और हो तो फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. मतलब ये कि 32 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. अब अगर 864 को हम इसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स बना दें तो फिर क्या होगा? आखिर में जाके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनके 3 के मल्टीपल्स हम बना लेंगे कि 3 बन रहे हैं या 6 बन रहे हैं, और अगर 7 हो तो फिर उसी नंबर के 2 और होने चाहिए. जैसे ये 2 के 2 बन रहे थे, हमने एक 2 और लगा दिया, 3 और हो गए, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा. ये 32 को किससे मल्टीप्लाई करें? हम 2 से मल्टीप्लाई. अब इसको भी करते हैं हम. गिवन नंबर क्या है हमारे पास? गिवन नंबर 864. ओके, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे. यहां पे बनाते हैं हम. ओके, तो 864 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 864 तो 2 से करेंगे हम, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 4s are 8, 2 3s are and 2 2s are. Again 2 2s are, 2 1s are and 2 6s are. Again 2 10s are and 2 8s are. Again 2 5s are and 2 4s are. 2 2s are and 2 7s are. Now with 3 9s are. Again 3 3s are. Again 3 1s are. क्या मैंने बताया हुआ है आपको? ये 2 के जो है वो 3 2s हो गए हमारे पास, ये 3 3s भी पूरे ही हैं. तो ये जो 2 और 2 है, ये जो है हमारा, इसके अंदर एक और 2 होता तो फिर ये परफेक्ट क्यूब बना था. मतलब फिर कितने हो जाने थे? अब कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 3 के अगर हम सेट्स बनाना चाहते हैं तो 9 होने चाहिए थे. मतलब यहां पे एक 2 नहीं है, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? 2. मतलब इस 864 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर एक 2 और हो जाना था. यहां पे 2 का एक सेट बन गया 3s का, फिर 2 का एक 3s का सेट और 3 का भी 3 का सेट. तो फिर ये इसने एक फुल क्यूब हो जाना था, यानी परफेक्ट क्यूब हो जाना था. तो हम क्या लिखेंगे? सो आवर रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर
इज इक्वल 2, क्योंकि यहां पे एक 2 कम है, यहां पे 2 3 पूरे हैं, यहां पे भी 3 का एक सेट बन रहा है, यहां पे इन 2s का एक सेट 3 वाला नहीं बन रहा, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि ये 2 ही एक रिक्वायर्ड नंबर है हमारा। अगर हम इस 864 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो एक हमारा परफेक्ट क्यूब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने नहीं किया, 4 के बाद मैंने 6 किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 में 4 की तरह 4 में उसने कहा था बाय विच नंबर द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है बाय विच नंबर द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइड। तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, आपने प्राइम फैक्टर्स ही बनाने हैं, और जिस नंबर के पूरे सेट्स नहीं बनेंगे वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो। ओके, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, फाइंड द क्यूब रूट। इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो देखते हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम इसका बनाएंगे क्यूब रूट, फाइंड करेंगे 5 8 3 and 2। ओके, इसकी 2 के साथ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 2s are 4, 2 9s are 18 and 2 1s are 2, 2 6s are 12, again by 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16, again 2 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 2 9s are 18. Now this number cannot be divided by 2, so we will divide it by 3. 3 2s are 6, 3 4s are 12 and 3 3s are 9. 3 8s are and 3 1s are, again by 3. 3 27s are, again by 3. 3 9s are 27, again by 3. 3 3s are 9 and again by 3. 3 1s are. So these are the sets of 3 sets of all these factors, one set of 2, one set of 3 and again one set of 3. Okay, so we want to find the cube root of 5832, 5832 and its cube root is equal 2 multiply 2 multiply 2, then multiply 3 multiply 3 multiply 3, again multiply 3 multiply 3 multiply 3. Now its cube root. So the same thing as we have already done there. Cube root of 2 raised power 3, again 3 raised power 3, again 3 raised power 3. Now we can write it as 2 multiply 3 multiply by 3. ये सबकी पावर 3 3 है, तो हम एक ही दफा इसको पावर 3 लिख दें और फिर इसका क्यूब रूट। एक तरीका ये है कि इसको इधर इसके साथ कैंसिल कर दें, दूसरा ये है कि 3 और इस क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है। एक स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 3s are 6, 6 3s are 18 या 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 की पावर 3 और ये क्यूब रूट खत्म करने से पावर 1/3 कैंसिल, तो हमारा जो क्यूब रूट आ गया वो कितना है 18। अब अगर हम इसको इधर ही लिख दें 18 इक्वल डाल के तो भी ठीक है। दैट इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इसके 5 और 6 पार्ट्स हैं। सभी पार्ट्स में क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और प्राइम फैक्टर्स बना के बाद में इस मेथड को फॉलो करना है। आप तो वो सारे प्राइम फैक्टर्स जो है वो क्यूब रूट के अंदर लिख देने और फिर क्या करना है, उन सबको उनकी पावर 3 3 हो जाएगी और फिर सबको मल्टीप्लाई करके होल की पावर बना देनी है, देन पावर कैंसिल कर देनी है और आपका नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर है वो सामने आ जाएगा। तो चले इस वीडियो में बस इतना ही काफी है, और अगली वीडियो में मजीद क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड हम करेंगे और कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर दें, और अगर नहीं होगी वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म तो एक और वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।